Once again, a very good morning, all of you. Today, we will finish our exercise 3.5. Some questions are left in our last class, so we will finish it first and then we will move forward. So, as here, the second question, the question is here are two different factors tree of 60. Write the missing number. See, there are some missing actually in my book which is already filled. So you can see and check the factor is as 60 is divided into in a tree form, and then 60 divides in 6 and 10, product of 6 and 10, and then 6 is divided 2 and 3, and 10 is divided 5 and 2. These are the factors. 6 10 6 are 60, 2 5s are 10, and 3 2s are 6. In such a way, second one, 60 is divided into 30, 2 ja 60, 30 and 2, 30 is divided 10 and 3, 10 3s are 30, and 10 is divided 5 and 2, 5 2 ja 10. So these are our factor of 60. And then next question. Our next question is, which factors are not included in the prime factorization of composite number? See, composite number के जो हम prime factor करते हैं तो उसमें 1 n in the number itself is never included. So हम यहाँ पे देख सकते हैं, my answer is 1 n itself. Okay. Now question number 4. Write the greatest 4 digit number and express in the terms of its prime factor. हमें 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, और उसका हमें प्राइम फैक्टर करने हैं. सो हियर इज माय सॉल्यूशन. द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, एज वी नो फ्रॉम आवर प्राइमरी क्लास, 9 9 9 and 9 is our greatest 4 digit number, and smallest, as you know, 1000. So greatest 4 digit number is 9999, 4 times 9. So prime factorization of 9999 is, first of all, we can see by 2 it is not divisible. That's why we will take 3. Once we are divided in 3, so it will 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. So 3 3 3 3 again by 3, 1 1 1. 11 से करेंगे 101, and 101 से करेंगे तो 1, because 101 is also our prime number. So factors are, see, the factors are 3 3 11, 101 and 1. So this is my solution. Prime factorization are 3 3 11, 101 and 1. Okay, question is already written here. Write the smallest 5 digit number and express. Again, it is the same question as our last one, but here the smallest 5 digit. In our previous question, 4 digit greatest. So 5 digit greater number is 1, and 4 times 0, 1 0 0 0 0. So prime factorization, as we done in our previous question, first of all we will check it is divisible by 2. Yes, so by divisible 2 it comes 5000. 10,000 divided by 2, 5,000. 5,000 divided by 2, 225. Again 2, 1250. By 5, again 2, 625. Then 5, 125, 5, and then, so you can easily see these are my prime numbers, which is already written in very next line. 2 2 2 2 into 5 5 5 5 5. So these are my 4 times 2 and 4 times 5. This is my prime factorization. So you can note down in such a way, right? Okay, next question. Question number 6. Okay, question number 6 is, find the all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. पहले हमने इसके prime factor निकालने हैं 1729 के, and then now arrange in ascending order. फिर इनको ascending order में करना है. Now state the relation if any. अच्छा, इनके बीच में अगर कोई रिलेशन आया तो हमें वो करना है. लेट्स चेक द सॉल्यूशन.
Here's my solution. Solution number 6. The number is 1729 and prime factor is, first of all we will check it can't be divisible by 2, 3, 5. Then we will try it by 7. So 247 and again 13. So 19 and 19 से 1 में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने 7 से डिवाइड किया तो 247 आया, फिर 247 को 13 से डिवाइड किया, सो 19 और 19 से किया तो 1, क्योंकि प्राइम नंबर ही इसमें हमारे होने चाहिए. सो प्राइम फैक्टर्स आर 7 इंटू 13 इंटू 19 इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें जो सेकंड पॉइंट था हमारा, सो असेंडिंग ऑर्डर इज़ लाइक 7, 13 एंड 19. अच्छा, रिलेशन की बात भी की थी इन्होंने, सो लेट्स चेक द रिलेशन. अगर हम तीनों प्राइम फैक्टर को देखें तो इनके बीच में जो डिफरेंस है सेकंड का फर्स्ट से और थर्ड का सेकंड से, दैट इज़ 6. सो मे बी द रिलेशन, द डिफरेंस इज़ 6. एक रिलेशन ये भी हो सकता है. और अगर हम कुछ दूसरा लॉजिक इसमें यूज़ करना चाहें सो वो भी हम चेक कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपल लगा, सो वी विल यूज़ दिस वन. ओके, 7 क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन. Our 7 question is the product of 3 consecutive number is always divisible by 3. देखिए 3 consecutive, जो consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1, 2, 3 या फिर 5, 6, 7 या फिर 100, 101, 102 या 1000, 1001 एंड 1002. सो एक के बाद जो दूसरे नंबर आते हैं +1 सक्सेसर जो होते हैं हमारे, सो वो उनका अगर हम प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें उनको तो वो 6 से डिविजिबल होते हैं. एंड वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प. अच्छा, चेक करते हैं. लेट्स चेक अवर सॉल्यूशन. ओके, हियर इज माय सॉल्यूशन. सी द गिवन स्टेटमेंट इज रियली एब्सोल्युटली राइट. यस, इट इज़ ट्रू दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. ये हमेशा क्या होते हैं, 6 से डिविजिबल होते हैं. इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया हुआ है. एग्जाम्पल इस तरीके से है. If we take first 3 numbers 1, 2 and 3 and we will find the product. So product is 1, 1, 2 जा 2, 2, 3 जा 6 and then अगर हम next number लें 2, 3, 4, so product होता है हमारा 24 और 4, 5, 6 लेते हैं तो 112. फिर हम 5, 6, 7 भी ले सकते हैं, 6, 7, 8 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर लेंगे हम, सो वो इसी सीरीज़ में बनेंगे. हियर द प्रोडक्ट आर 6, 24 एंड 120. तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होते हैं. अगर इसके आगे हम भी और करें, जैसे 5 इंटू 6 इंटू 7 करें या फिर 6 इंटू 7 इंटू 8 करें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा. राइट, सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन. ओके, लेट्स चेक द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers. देखिए यहाँ पे consecutive odd numbers बोले and the sum of 2 consecutive odd number is divisible by 4. Verify. देखिए इसका चेक करते हैं कि जो सम है वो हो रहा है नहीं हो रहा है. सो लेट्स चेक दिस वन अगेन. यस, इट इज़ द ट्रू. द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. सो अगर हमने यहाँ पे odd number की बात करें सो 3 + 5 वो हमारा 8 होता है विच इज़ डिविजिबल बाय 4. और 1 और 3 करें तो वो भी 4 होता है, वो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया. 1 + 3 ये भी ऑड नंबर्स होते हैं तो 1 + 3 4, वो भी 4 से डिवाइड होगा. 3 + 5 ये भी 8 है तो ये भी 4 से डिवाइड होगा. 5 + 7 ये भी 12 है तो 4 से डिवाइड होगा. और 7 + 9 16 ये भी 4 से डिविजिबल होगा. 9 + 11 ये भी 20, ये भी 4 से तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो 8, 12, 16, 20 आ रहा है. या फिर हम अगर यहाँ पे 1 + 3 करें तो ये भी हमारा 4 जो है वो भी हमारे 4 से डिविजिबल होता है. सो इस तरीके से हम देखें कि जो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं एनी 2 तो उनका जो सम है वो जो है 4 से डिविजिबल यहाँ पे होगा. राइट, ओके, लेट्स मूव योर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 9. सी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. देखो अभी कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास चार यहाँ पर जो है हमारे पास दे रखे हैं. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टर है. अगर हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अपने पहले वाले क्वेश्चन की जो कि ये है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4, लेकिन 4 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए ये प्राइम नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड क्वेश्चन की, इफ़ आई एम टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ the factors are 7 into 2 into 2 into 2, all are prime numbers. 7 प्राइम नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर है ही, सो इसलिए ये एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा.
अगर हम बात करें थर्ड की, तो हमारा जो नंबर है वो है 2 × 5 × 7. फैक्टर्स आर 2, 5 and 7 which are prime numbers. So this is again our prime factorization. If I'm taking your last question, last part, if I'm taking your last part, and last part is the factors are 2, 3 and 9. पर 9 जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा. तो ये बहुत सिंपली हमें पता चल गया कि अगर किसी के फैक्टर्स प्राइम नंबर हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अगर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट भी हैं, तो केवल उसके फैक्टर्स हो गए. सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एंड इसको नोट डाउन भी करेंगे. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. डिटरमाइन 25,110 इज डिविजिबल 5. देखिए यहाँ पे एक हिंट भी दे रखा है कि 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी. देखो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 5 से और 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो 45 से भी डिविजिबल होगा. सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 25,110 जो है वो 5 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है. सो हियर इज़ माई सोल्यूशन. ओके, दिस इज़ माई लास्ट वन ना हियर. तो यहाँ पे हमने देखा कि 25,110 इज डिविजिबल 5. तो रूल हमारे पास ये होता है कि इफ़ एनी नंबर divisible by 5 and 9, so this number is also divisible by our 45. This number is also our divisible by 45. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. So we will check कि 25,110 is divisible by 5 or not. So it is divisible by 5 because your last digit is 0. जिसका लास्ट में 0 डिजिट होते हैं, 0 होते हैं, वो डिविजिबल होते हैं. एंड लेट्स चेक विद द 9. अगर 9 से डिविजिबल है ये, तो हमने देखा कि द सम ऑफ द डिजिट, देखिए यहाँ पे 2 + 5 + 1 + 1, ये हमारे सारे जोड़ के 9 हो जा रहा है, और 9 जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा. सो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो 9 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा. अगर 9 और 5 से, 5 और 9 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस नंबर विल डिविजिबल बाय 45 ऑल्सो. राइट, सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन कि जो 25,110 है वो 5 और 9 दोनों से ही जो डिविजिबल है, तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा. अच्छा, द लास्ट 11th क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास कि वो कह रहा है आपसे कि 11th क्वेश्चन कह रहा है कि 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि जो 18 है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, और जो इनके प्रोडक्ट है 2 और 3 उससे भी डिविजिबल है. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी ये डिवाइड हो रहा है. 6 से 12 18 डिविजिबल हो जाता है. तो सिमिलरली ये कह रहा है कि जो 4 और 6 है उससे कोई ऐसा नंबर है कि जो 24 से बड़ी, तो 4 और 12 जो है वो 12 को डिवाइड करते हैं. 12 4 से भी डिविजिबल होता है और 12 6 से भी डिविजिबल होता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है 24 है, तो 24 से 12 डिविजिबल नहीं होता. तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो यही कह रहा है कि नो, द नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय 6 and 4 बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24. सो यहाँ हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया. एंड योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज़ I am a small number having 4 different prime factor. अब 4 different prime numbers हमारे जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और उनका having 4 different prime numbers. Can you find me? देखें हम इसको ढूंढ पाते. सो बहुत ईजी है ढूंढना. हमने प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स निकाला, तो अगर डिफरेंट है तो एक प्राइम फैक्टर्स का 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 7 होगा. अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 = 6 और 5 7 = 35, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो 210 आ जाता है ये. अगर ये 210 जो है ये एक हमारा ऐसा नंबर है जिनके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.5. यू जस्ट ट्राई इट इन योर फेयर कॉपी एंड सी बेटा, as you know this is your fair copy, so you must make separating line also. Your copy should be looks very nice, right? It is your duty and you have enough time. You can submit your these solution till 5 PM today. Okay,